So good morning dear students. I hope you must have gone through the topic which I discussed yesterday. I told you about the French Revolution, the changes which took place in Europe, the different ideas of the liberals, the radicals and the conservatives. Now today I am going to discuss with point 1.2, that is the industrial society and the social change. Now children, in this topic I am going to tell you about the various changes which took place in the 19th century. The changes brought up in the society during the 19th century, that is from 1801 to 1900. Now in this 19th century there was a social as well as economic changes that took place. It was a time when the new cities with industries and the industrial regions started developing in Europe. That means industrialization took place in Europe. There was an industrial revolution. Due to industrialization, new cities and industries came up. Railways started expanding. Industrial revolution occurred. And as we know that if there is a positive change in a society, we can see its negative effect also in a society. Now this industrial revolution brought many problems with it, like the workers, those who are working in the factories, they have the long working hours. Poor wages were there. They were given the very poor wages, and especially unemployment occurred during the time or when there was a low demand of industrial goods. Unemployment took place. There was a problem of a housing problem as well as sanitation problems were also seen over there. Now liberals and radicals, they wanted a change in it. They wanted to bring a change in such kind of problems which took place in Europe at that time. Now, why these changes were there? First of all, I would like to tell you that these liberals and radicals people, those who believed in the liberals ideology as well as the radicals ideology, they themselves were the industrialists, employers, they were the property owners also, and side by side what they wanted along with it, these liberals and radicals, they were the property owners, they were the employers, and these liberals and radicals, they made property through trade and industrial ventures also, and they wanted that this industry should also flourish side by side. They wanted to bring a great change in the economy of the country, and simultaneously for bringing the changes they want to help the people of the society. How? Because वो अपना भी फ़ायदा देखना चाहते थे कि हमारी भी इंडस्ट्रीज़, हमारी भी लैंड जो है वो हमसे चली ना जाए, इसलिए वो ये कहते थे कि हमको यहाँ पे जो है पॉपुलेशन को एजुकेट करना ज़रूरी है, एक हेल्दी पॉपुलेशन रखना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. ओके, नाउ these liberals and radicals, they had one problem. वो changes भी लाना चाहते थे कि हमारी भी काम बनता रहे और साथ ही साथ पॉपुलेशन को भी हम अच्छा कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें, उनकी हेल्थ पे ध्यान दे सकें और हमको भी प्रॉफिट मिलता रहे. लेकिन लिबरल्स एंड रेडिकल्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो था ओल्ड एरिस्टोक्रेसी का प्रॉब्लम. ओल्ड एरिस्टोक्रेसी मीन्स एरिस्टोक्रेट क्लास, दैट इज द किंग क्लास. क्योंकि देखो व्हेन किंग रूल इज देयर, मोनार्क रूल इज देयर, वो अपने अनुसार देश को चलाता है, वो किसी का सुनता नहीं है और उसी पॉलिसीज़ को दूसरे लोग फॉलो करते हैं, उसके देश के लोग फॉलो करते हैं. सो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिजीम्स जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आफ्टर 1850 ये जो इस्टेब्लिश हुई थी यूरोप में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. नाउ कंजर्वेटिव रजीम कैसे इस्टेब्लिश हुई आफ्टर 1815 में? आपको मैंने पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन में आई टोल्ड यू दैट दिस 1850 इट वाज कनेक्टेड विद द फॉल ऑफ द नेपोलियन बोनापार्टे. ओके, नेपोलियन बोनापार्टे आपने सुना है. ओके, नाउ रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रांस. अब ये रिवॉल्यूशनरीज कौन होते हैं? रिवॉल्यूशन जो करते हैं. रिवॉल्यूशन कौन होते हैं? रिवॉल्यूशन जो चेंज लाना चाहते हैं अपने देश में. एक तरह से ये नेशनलिस्ट थिंकर्स भी होते हैं. सो रिवॉल्यूशनरीज जो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के थे, अब इन्होंने एक साथ मिलकर इन रिवॉल्यूशनरीज ने ये अब चाहते थे कि ये जो मोनार्की रूल है इसको अब ख़त्म कर दिया जाए और
उसके लिए अब वो जो है नेशन बिल्डिंग पे ध्यान देने लगे एंड ये लोग नेशनलिस्ट भी कहलाने लगे। नेशन स्टेट मीन्स आपको मालूम है नेशन स्टेट ऑलरेडी यू आर गोइंग टू लर्न इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, आई एम गोइंग टू टीच इन 10th स्टैंडर्ड, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप में। नेशन स्टेट जिसमें कि अपनी आइडेंटिटी हो, नेशन स्टेट की अपनी ओन बाउंड्री हो, वो एक चीज़ से पूरे देश को यूनाइट कर सके, अपना नेशनल सिंबल हो। तो अब ये चाहते थे कि वो नेशन बनाना चाहते थे और साथ ही साथ वो सिटीजन्स में इक्वालिटी लाना चाहते थे। फॉर एग्जांपल इटालियन नेशनलिस्ट गिउसेppe मैज़नी इसमें सबसे फेमस हैं। सो नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे और वो जो हैं उन गवर्नमेंट्स को ख़त्म करना चाहते थे जो यूरोप में 1815 इस्टेब्लिश हुई थी। सो नेशनलिस्ट दे टॉक ऑफ द रिवॉल्यूशंस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द नेशंस टू द सिटीजन्स, जो कि जो है उनको इक्वल राइट दे सके। और 1815 के बाद गिउसेppe मैज़नी ने, जो कि इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने जो है दूसरों के साथ इटली के अंदर एक नेशन स्टेट बिल्ड किया था। नेशनलिस्ट जो है दूसरी जगह भी, इवन इंडिया में भी इनकी गिउसेppe मैज़नी की राइटिंग से, जो उन्होंने डायरी लिखी थी, जो उन्होंने राइटिंग लिखी थी, इससे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और इन्हीं के थिंकिंग से जो है कई नेशन स्टेट बिल्डअप हुए थे यूरोप के अंदर। सो दिस वाज माय टॉपिक 1.2, जिसमें कि आपको मैंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में बताया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें आपको इंडस्ट्रीज के चेंजेस कैसे आए, इंडस्ट्रीज हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, जो प्रॉब्लम्स थी आपको डिस्कस किया। लिबरल्स एंड रेडिकल्स वो खुद जो है प्रॉपर्टी ओन्ड थे। अब वो जो नहीं चाहते थे कि उनसे इंडस्ट्रीज़ ले ली जाए या उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाए, तो वो क्या चाहते थे कि इसके साथ चेंज लाया जाए। चेंज कैसे? एजुकेटेड पीपल बनाने चाहिए, हेल्दी पॉपुलेशन होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छी एजुकेशन होएगी, अच्छी पॉपुलेशन होएगी, उनके यहाँ वर्क करेंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन लिबरल्स एंड रेडिकल्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो थी कंजर्वेटिव्स एंड ओल्ड एरिस्टोक्रेसी की, जो 1815 के बाद स्टैब्लिश हुई थी। सो रिवॉल्यूशनरीज जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया के थे, उन्होंने एक साथ जो है इन मोनार्किकल रूल को खत्म करना चाहा। किस थिंकिंग के साथ? नेशनलिस्ट थिंकिंग के साथ, नेशन स्टेट बिल्डिंग के साथ। और वो चाहते थे कि सिटीजन्स को यहाँ पे बराबर रखा जाए और इसमें इटालियन नेशनलिस्ट गिउसेppe मैज़नी सबसे ज़्यादा फेमस थे। सो दिस इज टॉपिक 1.2. Now I'm going to discuss with topic 1.3. 1.3 in 1.3 I'm going to tell you about the coming of socialism in Europe. यूरोप के अंदर सोशलिज्म कैसे आया? ओके, नाउ सोशलिज्म होता क्या है? ठीक है, अभी तक हम सोशलिज्म बोल रहे थे, लेकिन सोशलिज्म से हटे हुए थे हम। उसकी जगह हम कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, रेडिकल्स, इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब वी विल कम टू द मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द सोशलिज्म, एंड दिस इज वन ऑफ द फार रीचिंग विजन कि किस तरह से सोसाइटी जो है सोशलिज्म में स्ट्रक्चर्ड बनी थी, सोशलिज्म में के अंदर सोसाइटी कैसे फ्रेम हुई थी। सो अब इसमें क्या हुआ, 19th सेंचुरी में, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट इज 1850 के लगभग जो है यूरोप में सोशलिज्म जो है एक वेल बॉडी मानी जाती थी। सोशलिस्ट आइडियाज़ जिसके अंदर थे, और इससे ये जो सोशलिज्म के आइडिया से इससे कई लोग अट्रैक्ट हुए थे जिन्होंने इस आइडिया को फॉलो किया था, और उनको हम सोशलिस्ट कहते थे। ठीक है, once again I would like to tell you that by mid 19th century these ideas of जो सोशलिज्म थे यूरोप के अंदर, ये एक वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ थी जिसमें कई लोग जो है इसको काफ़ी अटेंशन मिला, लोगों ने इसको काफ़ी जो है सुना, पढ़ा, इसको फॉलो भी किया, और जिन्होंने इनको फॉलो किया उनको हम सोशलिस्ट कहते हैं। अब ये हु वर द सोशलिस्ट? Now, who were the socialists? The first question arises, who are the socialists and what does socialism mean? Now, I would like to tell you that socialist की meaning क्या है। सबसे नंबर 1, socialists were against the प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जैसे जिसकी अपनी ओन लैंड हो, जिसके अपनी ओन इंडस्ट्रीज हो, वो उसके अगेंस्ट थे। उनका कहना ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो एक रूट कॉज होती है सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स की। ठीक है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के अंदर। सपोज अब हमारे देश के अंदर ही आप देखो, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, और ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है इनकी, और उनके हिसाब सोशलिस्ट कहते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
एक सोसाइटी के अंदर। इंडिविजुअल्स जिसकी अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है, जिसको कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, एंड इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के में इनके अंडर में वर्कर्स काम करते हैं। अब क्या होता है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ओनर्स होते हैं, दे आर ओनली कंसर्न विद देयर ओनली पर्सनल गेन्स, वो अपने पर्सनल गेन्स दैट इज प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और वो वर्कर्स की वेलफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। वही वर्कर्स जो उसकी प्रॉपर्टी को मोर प्रोडक्टिव बनाते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपना मैनुअल लेबर दे के। दे आर नॉट कंसर्न विद द वेलबींग्स ऑफ द वर्कर्स। इसलिए सोशलिस्ट जो है, नाउ दे वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल, वो पूरी सोसाइटी एज अ होल चाहते थे, जिसमें कि सोसाइटी जो है अब प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी। ठीक है, सो इसी कारण सोशलिस्ट जो है, दे वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल विच शुड कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन। नाउ अब these socialists they wanted a change, is it clear? now अब सोसाइटी में चेंज लाने के लिए अब डिफरेंट जो है ये जो सोशलिस्ट होते थे, इनके डिफरेंट विजन थे अपने ओन फ्यूचर में कैसे चेंजेस लाने हैं, क्या लाने हैं। इनमें डिफरेंट जो है थिंकर्स आए, जिसमें कि रॉबर्ट अर्न आए। रॉबर्ट अर्न जो है ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जिसको कि न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए में एक नई कम्युनिटी बनाई, जिसको कि कहते हैं न्यू हार्मनी इन इंडियाना, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, इंडियाना इज इन यूएसए। ठीक है, इन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अदर सोशलिस्ट उन लोग को लगा कि कोऑपरेटिव्स जो है इट कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल। ये कोऑपरेटिव दूसरे लोग सोचने लगे कि ये जो कोऑपरेटिव है हम जो है वाइड स्केल पे नहीं बना पाएंगे। इज इट क्लियर? दूसरे लोग सोचने लगे कि ये जो कोऑपरेटिव जो एक हमको बड़े स्केल पे बनानी है, तो इस तरह से हम बड़े स्केल पे नहीं बना पाएंगे और इंडिविजुअल अकेले कोई काम करेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल से नहीं काम चल पाएगा। सो फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे, ठीक है, यूएसए में कौन थे? रॉबर्ट अर्न, एंड फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे। लुइस ब्लैंक चाहते थे कि गवर्नमेंट को जो है कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज क्या होता है? पूंजीपति जो कि कुछ लोगों के पास पैसा होता है और वही देश को चलाते हैं। तो लुइस ब्लैंक इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कोई कोऑपरेटिव्स जो है गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को हटाना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब ये कोऑपरेटिव्स क्या थी? दीज आर द एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते थे मिलकर। लोग मिलकर गुड को प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रॉफिट्स होती है उसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। ठीक है, सो कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? कोऑपरेटिव्स दीज आर द एसोसिएशन ऑफ द पीपल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। कोऑपरेटिव जैसे आपकी जो है मदर डेयरी कोऑपरेटिव है, ये जो है आपका मदर डेयरी हो गया, आपका अमूल हो गया, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी से आता है। इसमें क्या होता है, लोग मिलकर जो है ग्रुप मिलकर जो है इसको इस्टेब्लिश करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें जो प्रॉफिट आता है उसको इक्वली जो है वर्कर्स में डिवाइड करते हैं, मेंबर्स में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को। दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इसको याद करिएगा, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? Is it clear? What is cooperative society? This is the question which you should know. Is it clear? अब इसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। He was a very famous political thinker. ठीक है, कार्ल मार्क्स और दूसरे थे हमारे फ्रेडरिक एंजल्स। ओके, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स जो है इन्होंने इन लोग की जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें आइडियाज़ और ऐड किया। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ने इस आइडियाज़ को, जो कैपिटलिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें अपना आइडिया और ऐड किया, जिसमें कि मार्क्स बहुत फेमस थे। मार्क्स को तो हमेशा बीच में मार्क्स बोलेंगे, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सो मार्क्स ही आर्ग्यूड कि इंडस्ट्रीज सोसाइटी जो है इट वाज कैपिटलिस्ट, एंड कैपिटलिस्ट जो हैं ये क्या करते थे? कैपिटल इन्वेस्ट करते थे फैक्ट्रीज में। कैपिटलिस्ट वही पूंजीपति,
फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते थे, और जो प्रॉफिट होता था कैपिटलिस्ट का वो कौन प्रोड्यूस करता था? वर्कर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब अंबानी लीजिए, अंबानी इज अ कैपिटलिस्ट। अब वो क्या करता है, उसके पास पैसा है तो वो फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है और डिफरेंट वो लेके आता है, जियो लेके आया, ये सब लेके आया। अब इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट मिलता है उसमें जो कैपिटलिस्ट को, वो प्रॉफिट कौन दिलवाता है उसको? वर्कर्स, मजदूर जो है उसमें काम करते हैं और वही मजदूर जो है उसको प्रॉफिट दिलवाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो वर्कर्स की कंडीशन होती है, ऐसे में जो कैपिटलिस्ट है इनकी वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रॉफिट जब तक कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में जाएगी तो वो वर्कर के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो अपने बारे में सोचेगा। और वर्कर्स को, अब उसने कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स को जो है इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओवरथ्रो करना ज़रूरी है, और मार्क्स ने ये बिलीव किया कि हम कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है देश के अंदर उसको ख़त्म करना चाहिए, वर्कर्स को जो है एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें कि प्रॉपर्टी जो है सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और इससे जो है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश होएगी। एंड ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स जो है बाद में उनकी विक्ट्री होएगी इस कॉन्फ्लिक्ट में कैपिटलिस्ट के साथ, और इस तरह से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है एक नेचुरल सोसाइटी फ्यूचर में स्टैब्लिश हो जाएगी। नाउ अब देखो, सबसे पहले, इससे पहले इनके बारे में सोचने से पहले, विजन ऑफ ये डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, अब आप सोचिए एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी ऑपरेटर के थ्रू कैसे बन सकती है? अगर गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज से, तो कैसे देश को चलाएगा? एंड अब दूसरे क्वेश्चन ये होता है, एक सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने के लिए, सपोज करो हमारे पास कोई आइडिया है, कोई चीज़ बनानी है, अब उसके पहले हमको प्लानिंग करनी होगी कि हम उसको कैसे बनाएंगे। इसलिए सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने के लिए क्या बेस होना चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, वो कैसे इस्टेब्लिश की जाएगी, उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। सो अब इसमें आप डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स जो सोशलिस्ट हैं इनके थॉट्स को, इनके आइडियाज़ को आप याद करिएगा। दिस विल बी द क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है, दिस इज मस्ट हियर। एंड साइड बाय साइड द ड्रॉबैक्स ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। Now, in this first unit, I am going to discuss the last subunit, that is the support for socialism. Now 1870 में क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडियाज़ अब धीरे धीरे, जो सोशलिस्ट के आइडियाज़ थे, इन कार्ल मार्क्स के, फ्रेडरिक एंजल्स के, रॉबर्ट ओवेन के, ये धीरे धीरे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में स्प्रेड होने लगे, ठीक है। अब इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। Is it clear? Socialists ने they formed an international body which was called as a second international. अब ये कैसे इन्होंने बनाई, है ना? सो इसमें कैसे बनाने के लिए जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, इन्होंने मिलकर ग्रुप फॉर्म करना शुरू किया, पार्टी फॉर्म करने के लिए एसोसिएशन फॉर्म शुरू किया। किसके लिए? फॉर द बेटर लिविंग एंड द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री। इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, फंड्स इकट्ठा करना शुरू किया। अब फंड से वो क्या करते थे, वो जो मेंबर्स, जो वर्कर्स जो सब प्रॉब्लम्स में आते थे उनकी मदद करते थे। साथ ही साथ जो वर्कर्स का जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता था, 12-12 घंटे जो काम करते थे, उसको कम करवाने के लिए उन्होंने लड़ाई की इसी फंड के द्वारा। और साथ ही साथ उनको वोट डालने के लिए भी उन्होंने, राइट टू वोट के लिए भी, उनके लिए भी ये लोग लड़े थे। जर्मनी में दे वर्क क्लोजली, जर्मनी में ये जो सोशलिस्ट थे इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो है मिलकर इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को उन्होंने जिताया भी था। फिर उसके बाद ब्रिटेन में 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन दोनों ने मिलकर लेबर पार्टी फॉर्म की थी। अभी भी वहाँ पे लेबर पार्टी है ब्रिटेन के अंदर। एंड साथ ही साथ फ्रांस के अंदर भी इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था। इस तरह से ये सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट आइडियाज़ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में फैले थे। नाउ पार्लियामेंट, हर कंट्री के जो है यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स थे, ये एक स्ट्रॉन्ग फिगर थी। इनके आइडियाज़ ने लेजिस्लेशन को, लॉज को जो है शेप भी किया। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमेशा कौन चलाता था? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही यूरोप के अंदर। सो दिस टॉपिक
of Unit 1 finishes over here. So in this 4 topics we discussed about first of all that is the social change, जिसमें कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा. सेकंड हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ा. थर्ड टॉपिक में हमने द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप पढ़ा. उसके बाद द सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म के बारे में पढ़ा था. दैट इज द लास्ट टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन. तो जो 2 पार्ट थे चैप्टर के, एक था द सोशल चेंज और दूसरा द रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे. अब हम सेकंड टॉपिक दैट इज रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फॉर दिस पेज नंबर 29 तक हिस्ट्री में आप लोग रीड करिएगा, जिसमें कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे.